वालेकुम, वेलकम टू नोवाज़ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट नासिहा सरदार और ख्वाब से ताबीर तक के इस सफ़र में आज हमारे साथ मौजूद है वहाज, हु स्टूड 64th इन पाकिस्तान और उन्हें पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज में एलोकेशन हासिल किया है। तो आइए और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाज, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैडम, I'm feeling fine. First of all, thank you so much for coming here. And secondly, on behalf of National Officers Academy, my whole team, I congratulate you on this huge success. Thank you मैडम, thank you very much. तो सबसे पहले तो एक बहुत ही मासूमाना सवाल आपसे करूँगी कि कैसा फ़ील कर रहे हैं आप? I'm feeling sad and happy at the same time. Why sad and why happy? Happy का तो समझ आता है, but why the sad? Is it a bittersweet feeling for you A right now? bittersweet love tango, you can say. I've lost a lot and I have gained, I guess I've gained a little, but one must not grow weary of how things go. So I believe it has been a good journey, albeit arduous. लेकिन it was a good journey. I believe कि bittersweet relationship तो रहता ही है हर चीज़ में. Yeah. All right. So, was this your first attempt? Yes madam, this was my first attempt. और तैयारी आपने कितने अरसे में की इसकी? मैडम मैं ग्रेजुएट हुआ था 2022 के अंदर। ऑफिशियली आई वाज ग्रेजुएटेड इन सितंबर, बट अनऑफिशियली आई ग्रेजुएटेड इन अगस्त। मैंने अगस्त में बैच ज्वाइन किया नोआ का एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग हियर, और 14 या 10 फरवरी को मैंने, या 13 फरवरी को एग्ज़ाम था जो मैंने दिया। Right. 6 months, 3 months most probably. Right. So, I would like to know about your educational background. What was your educational background and where do you basically belong from? I belong from Islamabad. My parents have given 2.5 score years of their life here in Islamabad. I'm Islamabadian. I've completed my Bachelor's of Electrical Engineering and Power Engineering from Comsats University, Islamabad. All right, so you are an electrical engineer by profession. Yes, madam, I'm an electrical engineer. So, switching from that profession, from engineering to the civil services, what was the motivation behind it? Wasn't your field like that much rewarding or something? My field was very rewarding. I had a patent lined up. I had a machine that was one of its kind in the world. I was, you can say, poised to be in a good position. But engineering was my hobby. मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने से पहले भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स करता था, और डिग्री ख़त्म होने के बाद भी मैंने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ही किए हैं. इंजीनियरिंग वॉज माई हॉबी. ड्यूरिंग CSS भी मैंने ऐसे ही किया. CSS वॉज माई पैशन बिकॉज आई वॉन्टेड टू फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ माई एल्डर सिस्टर ईशा रहीम. तो मैंने उसको हॉबी लेकर चला, और अब भी करता हूँ. आज भी चीज़ें रिपेयर करता हूँ. आज भी अपनी गाड़ी खुद ही करता हूँ रिपेयर जो करना होता है. All right, so your sister is already in the civil services, Yes, right? madam. All right, and she was like the motivation. Yes, she was my motivation. फॉर्चुनेटली आप ये कह सकते हैं कि एक अनोमली हुई है कि मेरा भी 64th मेरिट नंबर है, उनका भी 64th मेरिट नंबर है, और सेम ग्रुप है हमारे. All right, so she's allocated to Pakistan Custom Services. Yes. Oh wow. All right. So, तैयारी के दौरान, what was the most challenging subject for you? Like which subject? No subject. No subject was challenging. No subject. Be it compulsory or optional. Be it compulsory or optional. Selection criteria आपका क्या था for the optional subjects? मैम पर्सनल विम्स एंड विशेस, जिसको देख के मेरा दिल चाहे इसको पढ़ने का. यही वजह है कि मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन रखा, जेंडर स्टडीज़ रखा, दरमियान मैंने एंथ्रोपोलॉजी भी रखी, क्रिमिनोलॉजी भी रखी, और US हिस्ट्री भी रखी. कुछ को ये मेन स्ट्रीम लगता है बट दे फैसिनेटेड मी, तो मैंने इसलिए सब्जेक्ट्स रखे. लेकिन मेरे माइंड में ये कोई नहीं था कि इसका स्कोरिंग ट्रेंड देखा जाए या इस तरह लेकर आगे चला जाए. All right. So वो आप वो bookworm थे या फिर study was like a piece of cake for you हमेशा से? Study was never a piece of cake for me. I was a failure initially. अगर क्लास में 30 बच्चे होते थे तो टिल द 5th grade अप्रॉक्सीमेटली मैं 30वां ही होता था. बट देन मेरी एल्डर सिस्टर ने पढ़ाना शुरू किया, और देन अल्लाह ताला ने भी रास्ते खोले, अपना करम और फजल किया. आई वाज नेवर अ बुक वर्म, लेकिन यह है कि जो चीज़ मैं एक बार पढ़ लेता हूँ मुझे याद रहती है. और इंजीनियरिंग ने मुझे कुछ एक्यूमेंट प्रोवाइड किया जिसको यूज़ करके मैं यहाँ पर मौजूद हूँ. मुझे मुश्किल नहीं लगा, लेकिन मुझे ये लगा कि जो मुझे तरीके सिखाए गए हैं दे वर बेटर एंड दे हेल्प्ड मी अ लॉट. All right, so your sister has been guiding you throughout the process, or you have joined some academy as well? मैम आई जॉइन नोआ बिकॉज उस टाइम जब मेरी सिस्टर ने पास किया था तो नोआ यहाँ पर नहीं मौजूद थी. इंटरव्यू प्रेपरेशन से स्टार्टिंग थी इनकी थोड़ी थोड़ी, जब हमें इसका पता चला. लेकिन मैंने नोआ से पढ़ा. सिस्टर तो मेरी मैरिड है, एंड यू नो हाउ मैरिड लाइफ गोज, तो दे कैन नॉट गिव अ लॉट ऑफ टाइम विद अ किड अराउंड एज वेल. एक दो दफ़ा मैं उनके पास गया है ना, जस्ट आस्क्ड हर नॉर्मल के कितना मुश्किल है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 बता दें.
शी यूज़ टू चेक माई प्रेसीज, वो भी प्रेसीज मैंने 10-12 लिखी, उसके बाद आई न्यू कि आई डू इट, सो आई जस्ट लेफ्ट इट. She helped me a little bit, but my academy helped me a lot. They groomed me, they made me to the gentleman that I am today, and they helped me a lot. I can say कि अगर अल्लाह ताला अलाउ करता कि किसी एक बंदे के सामने आप और सजदा कर सकते हैं, तो शायद मैं अपने असातिज़ा को करता. All right, so you have joined Nova like for a session, for a complete session? Yes, I was in batch 312, and I studied here for 3.5 months approximately. 4, you can add it. All right, और इसके बाद आपने मॉक एग्जाम्स भी दिए यहाँ से, like from National Officers Academy? मैडम मुझे लिखने से थोड़ी तकलीफ़ होती है. मैं लिखता तभी हूँ जब मेरा दिल बहुत चाहता है कि अब कुछ लिखा जाए. तो मैंने ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए. शायद मेरे घर वालों को इस पे एतराज़ भी हो, कि वो कहते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस के ज़ुमरे में आता है. बट आई बिलीव कि जब आपको एक चीज़ आती है तो वाई गिव इट मोर टाइम रादर देन यू कैन स्पेंड इट ऑन समथिंग एल्स. आई गेव मॉक्स ऑन ओनली कंपल्सरीज. आई रोट टोटल 4 essays in my whole entire life. God knows, Allah Almighty knows it very well. First was here at Noah, I got 48 marks. Then I said, okay, I will not do it again. The second I wrote in CSS. The third I wrote in PMS. The fourth I again wrote in CSS 2024, the next attempt that I gave. But when it comes to CSS, PMS या कोई भी competitive examination, I have heard, like everyone have heard कि आपने like either you have to like study 18 hours per day. आपने ये भी करना है, साथ में आपकी written जो practice है वो extensive होनी चाहिए. So फिर isn't that true? मैम रिटन प्रैक्टिस मैंने इतनी नहीं की. मेरा एक छोटा सा असूल है कि जो फ़ैसला लेकर आपको नींद ना आए, उस फ़ैसले को रिवर्स कर लेना चाहिए. तो मैंने पढ़ाई की. मैंने 24-24 घंटे, मैं शायद एक दिन मैं 1.5 डे तक जागा रहा. बट मैंने कभी ये डिसाइड नहीं किया कि आज 18 घंटे पढ़ूंगा और बोला आज ही तो सब मैंने ख़त्म करना है. ये मैंने कभी डिसाइड नहीं किया. हाँ मैंने पढ़ाई की है, हाँ मैंने उसके लिए नथिंग कम्स विदाउट पढ़ाई एंड स्ट्रगल. बट ये फिक्स नहीं था. सम डेज आई ओनली स्टडी 3 hours, सम डेज आई स्टडी 4 hours, सम डेज स्टडी 18 hours. आई स्टडी टिल द पॉइंट माई बैक ब्रोक. तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने बेड से गद्दा उठवा दिया और मैंने वहाँ पर फटा, जो नीचे स्लैब होती है उसके ऊपर मैं सोया करता था. और इंजीनियरिंग एक एक्यूमेन ऐसा इंजीनियरिंग आपको इस पूरे प्रोसेस से गुजार देती है. तो CSS आपको इतना मुश्किल नहीं लगता. कैसे इंजीनियरिंग भी आप 9-9 घंटे क्लासेस और लैब्स लेते हैं. सुबह 5:30 बजे आप निकलते हैं घर से, 8 ऑनवर्ड्स 3-3 घंटे की 3 लैब्स आप लेते हैं, यू गो बैक होम. तो वो मुझे इतना महसूस नहीं हुआ कि आज मैंने 18 घंटे पढ़ लिया. All right, so how about your experience of examination? जब आपने एक ही दिन दो papers देने, सुबह भी आपने देना है, दोपहर भी आपने देना है, because I have heard that that's very an exhausting process. जो सुबह का paper तो फिर भी easily हो जाता है, but for the second one you are sleepy, you are nervous, you are anxious, you are pressurized, you are tired. So how was your experience जो आपका exam का जो week था? Madam, in 2 words, my father and my mother, they were there for me throughout the whole process. मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि यार दूसरा एग्ज़ाम है क्या है. दिस इज़ अ वेरी फनी स्टोरी. व्हेन यू टेल इट टू पीपल आर गोना लाफ, सम पीपल आर गोना बी वेरी हैप्पी, सम पीपल आर गोना बी इट हैपेंस. बट व्हाट हैपेंड वाज कि मैं पेपर देने जाता था और मेरे वालिद साहब बाहर होते थे. जब मैं निकलता था तो मेरे वालिद साहब चाय और टोस्ट जो मेरी वालदा ने सुबह उठकर जल्दी अलग सुबह बनाए होते थे वो खिलाते थे. ऐसे भी टाइम आए हैं, मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है कहने के ऊपर, कि वालिद साहब ने हाथ से भी खाना खिलाया बिकॉज आई वाज कि यार दिल नहीं चाह रहा, आई नीड टू स्टडी. एंड मैंने ज़्यादा कोई इस तरह नहीं किया. बट एक पार्क था इस्लामाबाद में हमारे ज़र तरक्याती बैंक के करीब, और वहाँ पर मेरे वालिद साहब ले जाया करते थे. एंड ही नेवर मेड मी फील के मैं थका हुआ हूँ. ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी. और उन्होंने अपने हाथ से भी खिलाया मुझे. मैं इसको ऑन रिकॉर्ड चाहता हूँ कि ये बात आए, उन्होंने अपने हाथ से खिलाया. और उन्हीं की बदौलत मैं कह सकता हूँ कि आप ये कह सकते हैं कि पेपर तो मैं ही लिख कर आया, लेकिन मेरे पीछे इनविजिबली मेरे वालदा, मेरे वालिद, मेरी बहनें और मेरे तमाम अजीज़ व अकारिब खड़े थे जिनकी बदौलत मैं यहाँ पर हूँ. तो मैंने अकेले ने नहीं किया, ये उन सब की मेहनत इसमें शामिल है. पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज इवेंचुअली अगर आप एक प्रोसेस में इफ़ यू आर टायर्ड, अगर आपको एग्जॉशन हो जाती है, सो देयर फेसेस, देयर इमेजेस इन योर माइंड, दैट्स समथिंग लाइक दैट कीप्स यू गोइंग. सो यू वर ब्लेस्ड दैट आपको पेरेंटल सपोर्ट पूरी तरह से हासिल था. आई वॉज वेरी ब्लेस्ड. माई फादर नेवर आस्क्ड मी कि वाई आर यू कमिंग लेट एट 11. ही नेवर आस्क्ड मी. आई यूज्ड टू सिट हियर. मेरी फेमस लाइन है कि जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो मैं टेंट लगा कर इधर ही बैठा रहूँगा. तो सम पीपल गॉट अनॉयड बाय इट, सम पीपल हेल्प मी अलॉट. लेकिन आई वॉज के वालदैन की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता. अगर मेरे वालिद साहब चाहते, वो कहते 9 बजे इधर ही आपने पहुँचना, यू हैव टू बी हियर. तो
like I said again, वालदैन they are a blessing of Allah Almighty, and I believe कि मेरे वालदैन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया जो कभी शायद मैं इस उम्र में और अगली जन्म के अंदर भी मैं उनको दोबारा कभी रिपे ना कर सकूं. No doubt, no doubt. All right, Wahaj, like discipline and consistency. अगर आपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, these two things are very important. तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज़ है दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि आपने उन क्वालिटीज़ की वजह से लाइक यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांटेड टू अचीव, और वो कौन सी क्वालिटीज़ है जो CSS एस्पिरेंट्स है उनमें वो होनी चाहिए, अगर नहीं है सो दे शुड वर्क ऑन देम in order to achieve success in this examination? The answer to your first part is कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी खामी है, मैं चीज़ की वाई ढूंढता हूँ. इफ़ आई डोंट गेट द वाई रिगार्डिंग के वाई इज़ इट हैपनिंग, आई बिलीव कि मैंने 18 बार एक सफ़े के ऊपर पाकिस्तान के करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक था करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल अकाउंट डेफिसिट, ट्विन बजट डेफिसिट, कीन्सियन इकोनॉमिक्स एंड स्टफ. तो मैंने जब तक वो मुझे समझ नहीं आई तो मैंने उस कागज़ को फाड़ता गया. तो आई हैव दिस टोकरी, एक लाल टोकरी जिसके अंदर मैंने वो तमाम कागजात रखे हुए हैं कि जिनसे आज मुझे नींद नहीं आई. तो मैंने जो प्रोसीजर जो मैं समझता हूँ मेरी एक ही खूबी है कि एक तो मैंने चीज़ों के पीछे वाई ढूंढी, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे बेहतर हो सकता है. दूसरा मैंने अपनी डिग्री को इनकलकेट किया इसके अंदर. और तीसरा काम मैंने इसके साथ ये किया कि मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ के अंदर, तो मैंने उसको सर पे सवार नहीं होने दिया. सर पे सवार ज़रूर किया लेकिन सिर्फ उस वाई को. आई वॉज नेवर इन द प्रोसेस के यार ये मैं बस याद कर लूँ, मैं इसको आई जस्ट लाइक क्रैम इट लाइक अ पैरट एंड आई विल गेट इट डन. नहीं. तो व्हेन आई न्यू द वाई तो आई कुड रिलेट दीज थिंग्स, और एक इंट्रिकेट स्पाइडर वेब बन गया वेयर आई कुड पिक समथिंग फ्रॉम हेयर, आई विल पुट इट देयर, आई विल पिक समथिंग फ्रॉम हेयर, आई विल पुट इट देयर. और ऐसे ही करते 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 तो इंशा तू मेरे यार के बस जोड़ तोड़ देख, तो हमने ऐसे ही करके उसको कर लिया. ऑल राइट. वैसे आपकी जो कॉन्वर्सेशन मैंने सुनी मुझे ऐसा लग रहा है कि यू वर नॉट दैट student, you were not that aspirant who sticks to a timetable, right? No. You never did that, right? मैं टाइम टेबल बनाता था ज़रूर, लेकिन उसको फॉलो नहीं कभी फॉलो नहीं हो कभी सका, follow नहीं. कभी फॉलो नहीं हो सका. लेकिन मैंने अक्षत जैन एक IAS-2 का टॉपर है UPSC का, मैंने उसका इंटरव्यू देखा, एंड ही सेड द सेम थिंग, यू मेक अ चार्ट, यू मेक एवरीथिंग बट यू डोंट फॉलो इट, बट इट्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चार्ट दैट मेक्स योर डे वेल. एंड आई फाउंड आउट कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आपकी जो प्लानिंग है वो चलती है. फॉर एग्जांपल मैं शेव नहीं करता था, वो कब मैंने स्टार्ट शेविंग तो एक रिचुअल बन गया. तो उस रिचुअल के साथ और विद दैट प्लान जो कि मैंने कभी फॉलो नहीं किया, आपको एक कह सकते हैं बुल वार्क के तौर पे वो एक्ट करता है कि वो आपको बताए रखता है कि यार चल ना भी कर लेकिन आधा तो करना. एग्जैक्टली. ऑलराइट वहाज, जितने भी हमारे CSS एस्पिरेंट्स हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए आप रोल मॉडल हैं, बिकॉज उन्होंने आगे जाके वही बनना होता है जो आज आप जहाँ पे हैं. सो आई वुड लाइक यू टू आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर देम. एडवाइस नहीं है लेकिन एक शेर ज़रूर है कि तेरी दुआ से क़ज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए. तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए. वही शराब वही हा हू रहे बाकी, तरीके साकी रस्में कदू बदल जाए. तेरी तमन्ना है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी तमन्ना है तेरी आरज़ू बदल जाए. तो मैंने इससे बहुत कुछ सीखा इस पूरे प्रोसेस से, और मैं आपको यही बता सकता हूँ कि आप तमाम लोगों की दुआ से मौत तो नहीं बदल सकती, लेकिन इससे ये ज़रूर मुमकिन है कि आप बदल जाएं. एंड यू मस्ट चेंज फॉर गुड. चेंज कम्स फ्रॉम विद इन वन सेल्फ, और अगर आप में से चेंज आती है तो आई बिलीव यू कैन डू इट. और चेंज छोटी चीज़ों से आती है. अपने इर्द गिर्द की खामियां देखना और उनके ऊपर बोलना इज़ वेरी ईजी, या किसी फेसबुक पेज के नीचे कमेंट करना या यूट्यूब पे कमेंट करना इज़ वेरी ईजी कि ओ लुक दिस गाय इज़ नॉट डूइंग इट राइट. लेकिन इफ़ ही इज़ नॉट डूइंग इट राइट देन आई सजेस्ट कि यू गाइज शुड टेक अप द फ्लैग एंड यू शुड बी एट द हेल्म एंड से ओके आई विल डू इट बेटर. तो डोंट स्पीक, don't blab, just do it and inshallah you'll get through it. Thank you. Thank you so much, Wahaj, for taking out time and being here today. It was so nice to talk to you. And once again, मेरी तरफ से and on the behalf of NOVA, I congratulate you on your success. Thank you, madam. बहुत शुक्रिया. Thank you all for watching. For more success stories, stay tuned with us. See you in the next one. Allah Hafiz.